everyone, I am Vandana and we are learning science of class 3. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book, Innovators Science. Today we are going to start with Unit 1, Flora and Fauna, and here in this unit we are going to start with chapter number 1, Plants Around Us. So let's move on to the intended learning outcomes. So here in this chapter we are going to learn about types of plants, parts of plants and their functions, importance of plants and animals in our life. Let's move on to kick off. So our body has different parts such as eyes, arms, legs and nose. हमारी जो body है उसमें ये सारे parts होते हैं. Like us, plants also have different parts. हमारी ही तरह ये जो plants हैं इनके पास भी बहुत सारे parts होते हैं. Each part of the plant has some important functions. हर एक part जो plant का है उसके कुछ आपको important functions मिलेंगे. Let us learn about it. तो चलिए इनके बारे में हम detail में पढ़ते हैं. Before that, let's move on to the exercise Funtopia. So here what you have to do, you have to identify the parts of a plant with the help of the clues given below. यहाँ पे आप देख सकते हैं clues दिए गए हैं. यहाँ से आपको ये clues देखने हैं and जो plant के parts हैं उनको identify करके यहाँ पे लिखना है. Also you have to label the parts in the space provided. ये जो जगह दी गई है यहाँ पे आपको इन parts को label भी करना है. So here the first one is it makes food for the plant. So leaf makes the food for the plant and here you can see this is our leaf. Next, it contains seed inside it. इसके अंदर आपको seed मिलेगा. It is the fruit. So here you can see this is the fruit. Next, third one, it grows under the ground. ये मिट्टी के नीचे grow करता है. It is the root. So here this part is the root. Next, fourth one, it helps the plant stand erect. ये plant को सीधा खड़े होने में help करता है. Stem, and this part is the stem. Next one, fifth, it helps in reproduction. Reproduction में help करता है. So it is the flower and here you can see this is a flower. So like this you have to label these parts and fill in the blanks. We see different kinds of plants around us. हम अपने आसपास बहुत सारे तरीकों के plants देखते हैं. Some plants stand alone. कुछ plants अकेले खड़े रहते हैं. Some grow against a wall. कुछ जो है wall की सहायता से खड़े होते हैं. Some grow along the ground. कुछ ground पे ही grow करते हैं. Some have woody stem. कुछ का जो stem है वो woody होता है while some are bushy और कुछ घने होते हैं, bush जैसे होते हैं. We find them in different shapes. हम इन सारे plants को अलग अलग shapes में देखते हैं, sizes में, colors में और habitats में देखते हैं. On the basis of such diversity, plants are of 5 types. So ये जो भी diversity है उसके according plants को हम 5 categories में divide कर सकते हैं. Trees, shrubs, herbs, creepers and climbers. तो ये 5 categories हैं जिसमें हम इन्हें divide कर सकते हैं. Let's learn about types of plants. तो चलिए पढ़ते हैं types of plants के बारे में. So सबसे पहले आते हैं trees. So trees are big plants with strong woody trunk. Trees क्या हैं? ये बड़े बड़े plants हैं जिनकी जो trunk है वो काफ़ी ज़्यादा strong होती है और woody होती है. They can live for many years and grow very tall. ये बहुत सालों तक जी सकते हैं और बहुत ही लंबे भी हो जाते हैं. Examples हैं coconut tree, banyan tree, mango tree. And here आप देख सकते हैं picture mango tree की. Next आते हैं shrubs. So shrubs क्या है? These are smaller than trees. ये पेड़ों से छोटे होते हैं. They have small, thin, hard woody stem. इनका जो stem है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, thin होता है, hard और woody होता है. And many branches. और इसमें आपको बहुत सारे branches दिखेंगे.
दे ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, ये ज्यादातर नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, ग्राउंड के क्लोज ग्रो करते हैं। दे आर मीडियम इन साइज, ये साइज में मीडियम साइज के होते हैं। एंड लिव फॉर सेवरल ईयर्स, और ये भी कई सालों तक जीते हैं। एग्जाम्पल्स हैं रोज, लैवेंडर, हिबिस्कस। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं हिबिस्कस की। नेक्स्ट कम्स द हर्ब्स। सो हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स, ये जो हर्ब्स हैं ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। दे हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, इनकी जो स्टेम है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मिलेगी आपको, ग्रीन मिलेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दे कैन स्टैंड इरेक्ट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे सीधा खड़ा रह सकते हैं। दे आर सीजनल प्लांट्स, ये सीजन के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं, जब सीजन आएगा तभी ये ग्रो कर सकते हैं आप। मोस्ट हर्ब्स लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, ज़्यादातर जो हर्ब्स हैं वो कुछ महीनों के लिए रहते हैं। एंड दे आर ऑफन यूज टू एड फ्लेवर टू आवर फूड, ये जो है यूज किए जाते हैं हमारे फूड में फ्लेवर ऐड करने के लिए। एग्जाम्पल्स हैं मिंट, बेसिल, कोरिएंडर एंड स्पिनच। तो यहाँ पे आप स्पिनच के पिक्चर देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू जस्ट अ हेड्स अप। सो हर्ब्स कंटेन ऑयल्स दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ टूथपेस्ट। हर्ब्स क्या करते हैं, इसके अंदर हर्ब्स के अंदर आपको एक तरीके का ऑयल मिलेगा जिन्हें यूज किया जाता है टूथपेस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, सोप्स और लोशंस को प्रोड्यूस करने के लिए, और साथ के साथ हेयर प्रोडक्ट्स को भी प्रोड्यूस करने के लिए। फिर आते हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स आर प्लांट्स हैविंग वीक स्टेम, क्रीपर्स जो है ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें आपको वीक स्टेम मिलेगा। दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं। दे डू नॉट गो अपवर्ड्स, ये ऊपर की तरफ नहीं बढ़ते, ये ग्राउंड में फैले हुए बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स हैं पम्पकिन, वाटरमेलन, बिटर गाउट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पम्पकिन जो कि एक क्रीपर है। नाउ नेक्स्ट कम्स क्लाइंबर्स। सो क्लाइंबर्स हैव सॉफ्ट, ग्रीन एंड थिन स्टेम्स। ये जो क्लाइंबर्स हैं आप देख सकते हैं ना, क्लाइंब कर रहे हैं, सो इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती है और पतली से थिन होती है। They do not stand erect on their own, ये खुद से खड़े नहीं हो पाते हैं। They need the help of another plant or support to stand. इन्हें क्या चाहिए, इन्हें दूसरे प्लांट का सपोर्ट चाहिए या फिर सपोर्टर्स लगाने होते हैं इन्हें खड़ा करने के लिए। Climbers have tendrils to hold the support। अब ये जो क्लाइंबर्स हैं इसमें छोटे छोटे आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंड्रिल्स होते हैं जिनकी मदद से ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट को पकड़ के अपने आप ऊपर खड़े होने की कोशिश करते हैं। Here are the examples of climbers: pea, grapevine, money plant। ये कुछ examples हैं। Let's move on to just a heads up. So coriander is also called Chinese parsley। coriander जो धनिया आप खाते हैं उसे हम Chinese parsley भी कहते हैं, और सिलैंट्रो या फिर उसे सिलैंट्रो भी कहा जाता है। इट्स लीव्स कैन बी यूज एज हर्ब्स एंड इट इज हाईली एरोमेटिक। इसके जो लीव्स हैं उसे हम हर्ब्स की तरह यूज कर सकते हैं और इनका जो अरोमा है, जो खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट कम्स ग्रासेस। सो ग्रासेस आर टाइप ऑफ हर्ब्स। ग्रासेस जो है ये भी एक तरीके के हर्ब्स होते हैं। द लीव्स ऑफ ग्रासेस आर थिन एंड फ्लैट। जो लीव्स होते हैं ग्रासेस के वो काफ़ी ज़्यादा थिन मीन्स पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं। एंड देयर स्टेम्स आर हॉलो, और इनके जो स्टेम्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, अंदर से खाली होते हैं। द ग्रेन्स वी ईट, पैडी जिसे हम राइस भी कहते हैं, वीट, बाजरा, ज्वार, रागी एक्सेट्रा आर द सीड्स ऑफ लार्ज ग्रासेस। तो ये जो भी चीज़ें हम खाते हैं, जो भी ग्रेन्स खाते हैं, ये बड़े बड़े ग्रासेस के सीड्स होते हैं। सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बाजरा एंड मनी प्लांट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज शुगर कैन एंड बैम्बू। सो शुगर कैन एंड बैम्बू आर टॉल ग्रासेस। ये भी जो है लंबे ग्रासेस है। एंड शुगर केन इज अ टॉल ग्रास दैट गिव्स अ स्वीट जूस। शुगर केन क्या है, एक बहुत ही लंबा ग्रास है जो कि हमें स्वीट जूस देता है। गन्ने का जूस पीते हैं ना सब,
सो शुगर इज मेड फ्रॉम दिस जूस, और ये जो शुगर हम खाते हैं वो इसी जूस से बनता है. Here you can see the picture of sugar cane. Next comes bamboo. So bamboo is the tallest grass. Bamboo एक tallest grass है that is strong and used for making furniture and houses. ये जो grass है इसे हम use करते हैं किस लिए? फर्नीचर बनाने के लिए या फिर हाउसेस बनाने के लिए. It stays alive longer than just a year. ये जो है एक साल से भी ज़्यादा जो है जिंदा रह सकता है. तो आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल है. And here you can see the picture of bamboo. Now let's move on to remember this. So sugarcane is cultivated as a source of sucrose. तो sugarcane जो है उससे जो है हम कल्टिवेट करते हैं, ग्रो करते हैं किस फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में. द टाइप ऑफ शुगर दैट मेक्स अप रिफाइंड शुगर. सो इसकी मदद से रिफाइंड शुगर बनाया जाता है जिसको हम टेबल शुगर या फिर वाइट शुगर भी कहते हैं. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू जस्ट अ हेड्स अप. सो द रिंग्स ऑन आवर ट्रीज बार्क कैन टेल अस हाउ ओल्ड द ट्री इज. सो आप देख सकते हैं ट्री का ये बाग का हिस्सा है. जब हम उसे कट करते हैं तो ऊपर से ऐसा दिखता है वो. सो ये जो बाग का जो ये पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे ऐसे रिंग्स बने होते हैं. सो ये जो रिंग्स हैं ये बताते हैं कि वो जो पेड़ है वो कितना पुराना है. ईच रिंग मीन्स द ट्री ग्रू फॉर 1 year. एक रिंग का मतलब 1 साल. जस्ट लाइक हैविंग अ बर्थडे एवरी ईयर. जैसे कि आप बर्थडे मनाते हैं ना हर साल, वैसे ही आप इन रिंग्स को गिन के ये बता सकते हो कि ट्री कितने साल का हो गया, उसका कौन सा बर्थडे मनाना है इस बार. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू ट्विस्टिंग टाइम. सो हियर यू हैव टू लुक एट द गिवन पिक्चर्स. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बने गए, उन्हें हमें देखना है एंड यू हैव टू क्लासिफाई देम अंडर द गिवन हेडिंग्स. यहाँ पे कुछ हेडिंग्स दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग इन्हें आपको कैटेगराइज करना है. सो हियर द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ रोज विच इज अ shrub. Next, this is a herb. This one can climb, so it is a climber. And this is creeping, so it is a creeper. Now, let's move on to parts of plants and their functions. अब हम पढ़ेंगे plants के parts के बारे में और उनके functions के बारे में. So a plant has 2 main systems. Plants के आप देखेंगे तो 2 main systems होते हैं. पहला आता है root system and दूसरा आता है the shoot system. Let's learn about the root system. So the root is the part of the plant. Root क्या है? वो part है plant का that grows under the soil. जो मिट्टी के अंदर grow करता है. Root fixes the plant to the soil. अब ये जो रूट है अपने आप को फिक्स कर देता है सॉइल से. They help the plant in taking water and nutrients from the soil. और ये प्लांट्स को हेल्प करते हैं मिट्टी में से वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेने में. There are 2 types. ये जो है 2 तरीके के होते हैं. पहला है टैप रूट एंड दूसरा है फाइब्रस रूट्स. तो ये रूट्स भी 2 तरीके के होते हैं. लेट्स लर्न अबाउट द टैप रूट. सो द टैप रूट हैज 1 थिक मेन रूट. ये जो टैप रूट है इसका एक मेन रूट होता है जो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है. दैट ग्रोज फ्रॉम द बॉटम एंड ऑफ द स्टेम. जो कि कहाँ से ग्रो करता है? जो बॉटम एंड होता है स्टेम का वहाँ से ग्रो करता है. इट कैन गो डीप इनसाइड द सॉइल. ये सॉइल के अंदर काफ़ी अंदर तक जा सकता है टू ऑब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स. और वहाँ से वाटर और मिनरल को ये जो है ऑब्जॉर्व कर लेता है. मेनी स्मॉल थिन साइड रूट्स ग्रो आउट फ्रॉम द मेन रूट. सो ये जो मेन रूट है इसमें से आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे साइड रूट्स भी ग्रो करते हैं. Plants such as turnip, bean, carrot and mustard have tap roots. ये कुछ examples हैं ऐसे plants के जिनके tap roots होते हैं. Next आता है हमारा fibrous root जो fibers से भरा हुआ है. So fibrous roots has thin roots of different sizes. ये जो fibrous roots हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे
कैसे रूट्स? अलग अलग साइज के पतले पतले रूट्स मिलेंगे which forms a bunch at the base of the stem. स्टेम के नीचे एक बंच की तरह, एक बेस की तरह ये इकट्ठा रहते हैं. They all grow downwards together. और ये सारे नीचे की तरफ ग्रो करते हैं एक साथ. Plants such as grass, onion, wheat, rice and palm have fibrous roots. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन प्लांट्स के जिनके पास fibrous roots होते हैं. Let's move on to remember this. So a taproot can sometimes act as a storage organ for food. ये जो taproot है ये कई बार जो है storage organ की तरह काम कर सकता है food का, while fibrous root cannot store food. लेकिन ये जो fibrous root है ये food को store नहीं कर सकते. जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कैरेट है. अब कैरेट का ये वाला पार्ट, ये जो रूट वाला पार्ट है ये हम खाते हैं. सो ये क्या कर रहा है? फूड को स्टोर कर रहा है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता. Let's move on to just a heads up. So the deepest root is found in wild fig tree. ये जो सबसे गहरा रूट है वो कहाँ पे मिलता है हमें? Wild fig tree का मिलता है at Eco Caves. Eco Caves में है ये in South Africa. It has penetrated to a depth of 400 feet. और ये कितना गहरा है? ये 400 feet तक जो अंदर जा चुका है. Next comes the shoot system. So shoot is the aerial part of the plant. shoot क्या है? ये ऊपर का हिस्सा, प्लांट का जो ऊपर का हिस्सा है, एरियल पार्ट है, उसे shoot कहते हैं. It consists of the parts such as stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits. अब ये जो एरियल पार्ट है उसमें ये सारी चीजें आती हैं. Let us understand them one by one. तो चलिए इनके बारे में one by one पढ़ेंगे. सबसे पहले आता है stem. So stem क्या है? The stalk of a plant is called the stem. ये जो stalk part होता है plant का उसे stem कहते हैं. Hard, thick and strong stems are called trunks. अब ऐसे stems जो काफ़ी ज़्यादा hard हो जाते हैं, thick हो जाते हैं, means मोटे हो जाते हैं, strong हो जाते हैं, उन्हें हम trunks कहते हैं. Trunks are found in mango, peepal and banyan tree. ये जो trunks हैं इन trees में हमें मिलते हैं. Potato and ginger are stems of plants. ये जो potato हम खाते हैं, ginger खाते हैं, ये क्या है? Stems होते हैं plants के that grow below the ground, जो ground के नीचे grow करते हैं. To store food, ताकि ये food को store कर सके, and are called underground stems. और इसलिए इन्हें underground stems कहा जाता है. तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं. अदर पिक्चर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू रिमेंबर दिस. सो द फाइब्रस रूट जनरेट्स फ्रॉम द स्टेम. जो फाइब्रस रूट है वो स्टेम से जनरेट होता है. एंड दिस इज नॉट द केस फॉर द टैप रूट. और टैप रूट में ऐसा कुछ भी नहीं होता. स्टेम होल्ड्स द प्लांट स्ट्रेट एंड सपोर्ट्स इट्स ब्रांचेस. स्टेम क्या करता है? प्लांट को सीधा रखता है और उसके ब्रांचेस को सपोर्ट देता है. इट कैरीज मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. ये जो है मिनरल्स और वाटर को रूट से लीफ की तरफ ले जाता है. एंड इट ऑल्सो कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और ये जो है फूड को ले जाता है लीव से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक. नेक्स्ट कम्स लीफ. So leaves are called the kitchen or food factory of the plants. Leaves को हम kitchen या फिर food factory कहते हैं plants के, because they prepare food for the plants using water, air and sunlight, means warmth. So ये क्या करते हैं? leaves water, air और sunlight की मौजूदगी में ये plants के लिए खाना बनाते हैं. Observe a leaf closely. Each leaf has a flat, broad part called the lamina or leaf blade. So अगर हम लीफ को बहुत ही ध्यान से देखें तो जितने भी लीफ होते हैं उसमें एक फ्लैट ब्रॉड पार्ट होता है जिसे लामिना या फिर लीफ ब्लेड कहा जाता है. ये आप देख सकते हैं, ये है लीफ ब्लेड. In the center it has a main vein from which many side veins arise known as the midrib. बीच में आपको एक मेन वेन दिखेगा, ये रहा मेन वेन, और इसमें से बहुत सारे साइड वेन्स निकले हुए आपको दिखेंगे. इस मेन वेन को हम मिडरिब भी कहते हैं. दीज वेन्स कैरी वाटर एंड फूड. अब ये वेन्स जो है क्या करते हैं? ये खाना
और जो पानी है उसे जो है प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। लीव्स कंटेन टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, जो कि हेल्प करते हैं इन्हें ब्रीथ करने में, सांस लेने में। प्लांट शो अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप। अब प्लांट जो है इनमें आपको बहुत सारे शेप्स मिलेंगे, साइज मिलेंगे, टाइप्स मिलेंगे लीव्स के। तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके के लीव्स आपको दिखाई देंगे। सम लीव्स स्टोर फूड, कुछ लीव्स जो है फूड को स्टोर करते हैं, जैसे कि स्पिनच हो गया, कैबेज हो गया एंड लेट्स हो गया। इनके हम लीफ पार्ट को खाते हैं। सो हियर यू कैन सी द लीफ ऑफ पीपल, मैंगो, लोटस एंड केजरी लीफ। Now let's move on to remember this. So all trees lose their leaves. जितने भी पेड़ हैं वो अपने पत्तों को लूज कर देते हैं। Though some leaves live for 2 or 3 years before they fall. लेकिन कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनके जो पत्ते हैं वो 2 या फिर 3 साल तक रहते हैं गिरने से पहले। तो ये था बहुत ही अमेजिंग सा एक फैक्ट। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू जस्ट अ हेड्स अप। So leaves of green plants have a green colored pigment. ये जो leaves होते हैं green plant के, इसमें आपको green color का एक pigment मिलेगा जिसे हम कहते हैं chlorophyll. It helps to trap the sunlight. ये sunlight को पकड़ने में help करता है। Leaves make food in the presence of carbon dioxide. अब ये जो leaves हैं जो खाना बनाती हैं कैसे बनाती हैं? वो carbon dioxide, water and sunlight इन सब के presence में ही खाना बना पाते हैं। और ये water कहाँ से मिलता है plants को? Soil में से। Next comes flowers. So flower is the attractive part of the plant. Flower जो सबसे खूबसूरत पार्ट होता है प्लांट का। They are of different colors, shapes and smell. ये अलग अलग कलर्स के, शेप्स के और स्मेल के होते हैं। Their petals make beautiful patterns. इनके जो पेटल्स हैं वो अलग अलग बहुत ही सुंदर सुंदर पैटर्न्स बनाते हैं। Some flowers store food and are eaten as vegetables. कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो क्या करते हैं, इन्हें ये जो है फूड को स्टोर करते हैं और हम इन्हें एज वेजिटेबल खाते हैं, सच एज कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। लेट्स मूव ऑन टू रिमेंबर दिस। सो टी इज मेड बाय सोकिंग द लीव्स ऑफ द टी प्लांट इन हॉट वाटर। जो आपके घर में चाय बनती है वो कैसे बनती है? जो टी प्लांट है उसके पत्तों को गर्म पानी में भिगाया जाता है और उसके बाद चाय बनती है। Let's move on to the next topic, which is fruits. So fruits are the delicious and edible parts of the plant. Fruits क्या है? ये delicious और edible part means इसे हम आसानी से खा सकते हैं। ऐसे part होते हैं plant के। Flowers develop into fruits. ये जो flowers हैं ये fruit में develop होते हैं। Seeds are present inside the fruits. इन fruits में आपको seeds मिलेंगे। Some fruits have only one seed. कुछ जो फ्रूट्स हैं उसमें आपको सिर्फ एक ही सीड मिलेगा, जैसे कि मैंगो हो गया या फिर पीच हो गया। सम फ्रूट्स हैव अ नंबर ऑफ सीड्स। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें बहुत सारे सीड्स मिलेंगे, जैसे पपाया या फिर वाटरमेलन कह लें हम। द सीड्स वी ईट सच एज राइस, व्हीट, कॉर्न, पीज, लेंटिल्स एंड नट्स आर एडिबल सीड। अब ये जो कुछ सीड्स दिए यहाँ पे मेंशन किए गए हैं ये एडिबल सीड्स हैं जो हम इसे खा सकते हैं। The seeds that we cannot eat are unedible seeds. और ऐसे seeds जो हम नहीं खा सकते उन्हें हम unedible seeds कहते हैं। Some seeds such as mustard, cumin and coriander are used as spices. और ये कुछ seeds हैं जो हम spices के रूप में खाते हैं। तो आप देख सकते हैं single seed of लीची, लीची में एक ही seed रहता है। Seeds in papaya, papaya में कितने सारे seeds हैं। Mustard seeds एंड क्यूमिन सीड्स जिसे हम जीरा भी कहते हैं। तो ये कुछ सीड्स हैं। देयर इज अ बेबी प्लांट एंड इट्स फूड स्टोर्ड इन सीड। सीड के अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है, उसका खाना होता है उसके अंदर, ताकि वो जो बेबी प्लांट है उसको खाना मिलता रहे। मोस्ट सीड्स हेल्प इन प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। ज़्यादातर जो सीड्स हैं वो न्यू प्लांट्स में ग्रो होते हैं। When a seed is sown in the soil and given sufficient water, जब किसी बीज को हम मिट्टी में दबा देते हैं और उसे इनफ अमाउंट में वाटर देते हैं, एयर देते हैं एंड सनलाइट देते हैं, तो क्या होता है वो ग्रो हो जाता है एक नए प्लांट में। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ये जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का एक नए प्लांट का, एक सीड से नया प्लांट बनता है, इस पूरे प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा सीड है, फिर अब उसमें से आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें बाहर निकल रही हैं, इट इज़ रेडिकल।
फिर आप देख सकते हैं ये आगे इसमें से रूट और स्टेम ग्रो कर रहा है, फिर जो है आप देख सकते हैं रूट हेयर ग्रो कर रहे हैं, हाइपोकॉटिल, एंड यहाँ पे हमारा जो बड़ा प्लांट है वो ग्रो हो रहा है। तो ये है प्रोसेस जर्मिनेशन का। लेट्स मूव ऑन टू जस्ट अ हेड्स अप। So the plant named Rafflesia is the largest flower in the world. वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो फ्लावर है वो है Rafflesia. Let's move on to importance of plants and animals in our life. ये जो plants और animals है वो हमारे life में क्यों important है? So animals and humans consume plants or other animals to obtain energy to do their activities. ये जो animals हैं या जो humans हैं ये क्या करते हैं? consume करते हैं plants को या दूसरे एनिमल्स को ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके अपने काम को करने के लिए। While plants produce their food using sunlight, air and water. लेकिन जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं? अपना खाना सनलाइट, एयर और वाटर की मदद से बनाते हैं। Let's move on to make teaching fun. So here what you have to do, you have to collect the following information regarding each tree. You have to name, you have to find a tree, you have to name it. It can be tree, it can be a plant. You have to name the color of the fruit. कैसा फ्रूट होता है, किस कलर का फ्रूट होता है उस प्लांट पे, क्या कलर है उस ट्री का, क्या साइज है या फिर शेप है उसके लीव्स के, एंड उसके फ्लावर के क्या कलर है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से ढूंढनी है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू वर्ड एड। सो लामिना इज द फ्लैट ब्रॉड पोर्शन ऑफ द लीफ. Vein is the branching structure found in the leaf. Chlorophyll is the green pigment found in the leaf, and edible means eatable. Let's move on to quick review. So here we are going to quickly revise the chapter. Some plants have woody stem while some are bushy. Trees can live for many years and grow very tall. Shrubs are medium in size and live for several years. Herbs are often used to add flavor to our food. Climbers have tendrils to hold the support. The leaves of grasses are thin and flat and their stems are hollow. Bamboo is our tallest grass that stay alive longer than just a year. Carrot and mustard have tap roots. Stem carries minerals and water from roots to leaves. And fruits are the delicious and edible part of the plant. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's move on to book exercise, which is put on your thinking cap. Let's move on to exercise which is darken the correct option in OMR sheet. So this is tick the correct option here. Some options are given, you have to choose the best one. So here the first one is this part of the plant remains underground, root, shoot, branch, bud. Correct answer is root. Second, the shoot contains stem, flowers, root, both A and B, means stem and flower. So here the correct answer is both A and B. Third one, strong and thick stem is called leaf, trunk, branches, seeds. Correct answer is trunk. Fourth one, a baby plant germinates into a seed when it gets water and air, sunlight, food, both A and B. Means water and air, sunlight. So here the correct answer is D, both A and B. Let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with correct words from the box. So here a box is given, you have to fill in the blanks accordingly. First one is sugar cane gives us sweet juice. Second, tap root has one thick main root. Third, onion and palm have fibrous root. Fourth, shoot is the aerial part of a plant. Fifth, most seeds help in producing new plants. Let's move on to C exercise, which is tick the correct statements and cross the wrong ones. So here the first one is watermelon and pumpkin grow on trees. This is false. Second,
Fruits are the delicious and edible parts of the stem. False. Third, the green pigment present in the leaves make food for the plants. True. Fourth one, roots of the plant grow above the soil. This is false. And the fifth one is a seed contains a baby plant and its food. This is true. So, these are the answers. Now, let us move on to the exercise, which is answer the following questions. So, here some questions are given, we have to answer them. Here the first one is name the different parts of a plant. So, the different parts of the plant are seed, stem, root, flower, leaves, etc. Next, second one, what is the role of stomata in a plant? So, the stomata helps in the breathing of the plants. Next, third one, what is germination? So, the development of a new plant from a seed is known as germination. Fourth one, why is leaf called the food factory of a plant? So, leaf is called the food factory of the plant because it helps in producing food. Now, fifth one, what is the difference between taproot and fibrous root? So, the main difference between taproot and fibrous root is that taproot, it has one thick main root, and in case of fibrous root, it has thin roots of different sizes. Taproot goes deeply straight inside the soil, and these fibrous roots, they scatter inside the soil. They do not go so deep inside the soil. So, these are the answers that you can write here. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I will be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.